ملک میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں پولنگ کے بعد نتائج جانے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ عام انتخابات 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں آزاد امیدوار 101 نشستیں لے کر سب سے آگے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون 73 اور پیپلز پارٹی نے اب تک 54 نشستیں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان 17، مسلم لیگ کاف 3، استحکام پاکستان پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اب تک 2 نشستیں اور مجلس وحدت المسلمین 1 نشست حاصل کر چکی ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں جہاں بڑے اپ سیٹ ہوئے، وہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے بھی کامیابی حاصل کی۔ عام انتخابات میں چاروں صوبائی اسمبلیوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی بن گئی۔ صوبے کے 297 میں سے 144 جنرل سیٹیں مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی ہیں۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 129 نشستیں لے کر صوبے میں دوسرے نمبر پر آ گئے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی 130 میں سے 84 جنرل نشستیں جیت کر صوبے میں دوبارہ حکومت بنانے کے قابل ہو گئی ہیں۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 115 میں سے 90 جنرل نشستیں جیت لی ہیں۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی 51 میں سے 11 جنرل نشستیں جیت کر صوبے کی سب سے بڑی جماعت بن گئی ہے۔ صوبے میں جمعیت علماء اسلام 10 سیٹیں جیت کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار 8 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں۔ عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کا معاملہ۔ گزشتہ رات سابق صدر آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی کوہ نور نیوز سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر ان کی رہائش گاہ پر شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات سے قبل دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے الیکشن کیمپین میں تنقید پر گلے شکوے کیے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نون لیگ پر بے جا تنقید کی، جس پر سابق صدر آصف زرداری نے کہا کہ وہ الیکشن کا حصہ تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ آصف زرداری نے شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب، آپ بھی تو جلسوں میں پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے ہیں، اب ہمیں حکومت سازی کے لیے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ جمہوریت میں استحکام کے لیے مل کر فارمولا طے کرنا ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے حکومت بنانے کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے پارٹی صدر شہباز شریف نے ملاقات کی اور آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پارٹی ذرائع نے کہا کہ لیگی قیادت کی جانب سے آزاد امیدواروں سے رابطے کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار، سردار صادق اور رانا ثناء اللہ کمیٹی میں شامل ہیں۔ لیگی ذرائع نے مزید بتایا کہ پارٹی قائد نواز شریف نے کمیٹی کو آزاد امیدواروں سے رابطے تیز کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی آزاد امیدواروں سے رابطے کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے عام انتخابات 2024 کے کامیاب انعقاد پر پوری پاکستانی قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عام انتخابات کے حوالے سے پاکستانی قوم کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہماری سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ قومی میڈیا، سول سوسائٹی، سول انتظامیہ اور عدلیہ کے ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا۔ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت پاکستان کی متنوع سیاست اور تکثیریت کو قومی مقصد کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش کرے گی۔ ای وی ایم ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے ہماری طویل جدوجہد کو یاد رکھیں۔ ای وی ایم میں کاغذی بیلٹ تھے جنہیں ہاتھ سے گنا جا سکتا تھا، لیکن اس میں ایک سادہ الیکٹرانک سلیکٹر
काउंटर भी था जो कि हर वोट डालने के लिए दबाए जाने पर बटन को साथ साथ गिन सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये तमाम जद्दोजहद जिसके लिए अवान सदर में 50 से ज्यादा मीटिंग हुई, नाकाम की गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफेन ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। चेयरपर्सन फाफेन मुसरत करीम की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मुल्क में 2 बरस से जारी अफरा तफरी के बाद इलेक्शन हुए। यकसा मौके न मिलने और दहशत गर्दी के खतरात के बावजूद सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। फाफेन रिपोर्ट में बताया गया कि 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले इंतखाबात में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मश्क को मुनाकिद किया जो काबिल सताइश है, ताहम इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में अक्सरियती हुकूमत बने या इत्तेहादी हुकूमत, उसे IMF के नए बेल आउट प्रोग्राम के सहारे की जरूरत हर सूरत रहेगी। मालियत के आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एशिया फ्रंटियर कैपिटल के फंड मैनेजर रोचर डिसाई ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को आइंदा 6 माह में कई बड़ी अदायगियां करनी है, जिसके लिए उसे लंबे अरसे का बड़ा कर्ज प्रोग्राम चाहिए होगा। रोचर डिसाई ने मजीद कहा कि हुकूमत चाहे अक्सरती हो या इत्तेहादी, उसे IMF के पास जाना होगा क्योंकि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों की सूरत हाल गैर यकीनी और गैर मुस्तहकम है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से दिए गए बयानात पर वजारत खारजा का बयान सामने आ गया। वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात से मुतालिक बयानात दिए गए। वजारत खारजा में कहा गया कि उनकी जानिब से दिए गए कुछ बयानात हकीकत पर मबनी भी नहीं थे। पोलिंग के रोज पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी, सिर्फ मोबाइल सर्विस दहशत गर्दी के वाकयात से बचने के लिए बंद की गई थी। आम इंतखाबात ने यह वाज़ेह कर दिया कि बहुत से लोग जो खदशात जाहिर कर रहे थे वो सब गलत थे। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने एक मुस्तहकिम और जमहूरी मुआशरे की तामीर के अज़्म के तहत इंतखाबात का इनेकाद किया। हम अपने दोस्तों के कारआमद मशवरों को अहमियत देते हैं, लेकिन इंतखाबी अमल की तकमील से कबल मनफी तबसरा करना बेबुनियाद और ठीक नहीं है। विफाक बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमें सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिससे मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम हो। अभी इलेक्शन रिजल्ट मुकम्मल होने के इंतजार में है। PTI के आजाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। कम तैयारी के साथ पंजाब में इलेक्शन मुहिम चलाई। लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। सुबह उठा तो देखा कि हम हार चुके हैं। अक्सरियत हमारे पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक में और KPK में हुकूमत बनाएगी और पंजाब में भी हम इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। हम तकरीबन अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गोहर ने रऊफ हसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन पुरअमन हुए। वोटिंग का अमल 5 बजे मुकम्मल हो गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी फरीजे से पहले भी नाकाम हो चुका था। आखिरी मरहले में भी इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीती हुई सीटों पर हराया गया। हम दावे से कहते हैं कि PTI को 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल हुई। 94 कौमी असम्बली की हैं जो इलेक्शन कमीशन ने फैसले जारी किए हैं। KPK में हमारे पास 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। इलेक्शन में कई हारने वाले उम्मीदवारों ने अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया तो मुतादिद उम्मीदवारों की जानिब से नताइज को चैलेंज किया जाने लगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने
एन ने 15 माह का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब एन 130 से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर के हल्का एन 119 से मरियम नवाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने हल्का एन 128 के नताइज जारी करने और वोटों की गिनती में शामिल न करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने सियालकोट के हल्का एन 71 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ की कामयाबी और फॉर्म 47 का नतीजा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एन 126 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैफुल मलोक खोकर की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। उमर डार की अहलिया रूबा उमर ने भी पीपी 40 सियालकोट के इलेक्शन नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में एन 127 से अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई है। कराची पर भत्ताखोरों को मुसल्लत नहीं होने देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पहले इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे, फिर मोबाइल सर्विस बंद कर दी, धांधली बर्दाश्त नहीं। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। 8 फरवरी को मुल्की तारीख का बदतरीन दिन था। कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया, आवाम अपना हक लेकर रहेंगे। आज हमारी इस जिद्दोजहद का आगाज हो रहा है। 2 पट्टी की चप्पल में आने वाले अरबपति बन गए, जो अपने कायद के नहीं हुए उनको शिकस्त दे दी। सब लोग सुन लो, इलेक्शन कमीशन का जाली नतीजा नहीं मानते। जमात ने हमेशा जाली मैंडेट को तर्क किया है। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के तनाजुर में दर्ज 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानतें मंजूर कर ली हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI के वकील शराज अहमद रांझा अदालत में पेश हुए। समाअत के मौका पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इसराइल की रफा पर फिजाई हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दर्जन से जायद जख्मी हैं। आलमी खबरस्तान इदारे के मुताबिक वजीर आजम नेतन्याहू की जानिब से रफा पर हमले और हमास के खात्मे के लिए मांगे गए मंसूबे के चंद घंटों बाद ही इसराइली फौज ने रफा पर वहशियाना बमबारी कर दी। गजा के 23 लाख शहरियों में से निस्फ से जायद रफा में पनाह लिए हुए हैं और तकरीबन रोज ही इसराइल यहाँ बमबारी कर रहा है। शाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल की बमबारी में जाँ बहक होने वालों की तादाद 14 हो गई, जबकि 10 से जायद जख्मी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के पहले हमले में हिजबुल्लाह के 2 जंगजू समेत 11 अफराद जाँ बहक और 6 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइल ने दावा किया है कि इसकी फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें असलहा डिपो भी तबाह कर दिया गया, जबकि मुतादिद जंगजू मारे गए हैं। उधर इंसानी हकूक के निगरान इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके में एक रहायशी इमारत पर इसराइल ने बमबारी की। Oh, the full toss, and she's hit the stumps at the same time. Alana King, but it's a no ball. Eloise Sheridan, that square leg. You see the confusion on everyone's face as to what's just happened there. Swivels around and cleans the stumps up. जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीमों के दरमियान मैच में दिलचस्प वाकया रोनुमा हो गया। दोनों टीमों के माबैन खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच में अजीब मंजर उस वक्त देखने को मिला जब अलाना किंग ने छक्का लगाया और उसी गेंद पर वो हिट विकेट आउट भी हो गईं। मैच के 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब मसाबाता क्लास ने नो बॉल की तो ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने छक्का लगा दिया और वो अपना तवाजुन खो बैठी और हिट विकेट हो गई। ताहम गेंद कमर से ऊंची थी तो एम्पायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया और यूं कैंगरूज को एक गेंद पर 7 रन मिल गए। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जनूबी अफ्रीका की विमेंस टीम ने पहले वनडे में कामयाबी समेट कर पहली बार तारीख में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में फतेह हासिल की थी। श्रीलंका के ओपनिंग बैटर पाथम नसांका एक रोज क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले श्रीलंकन बैटर बन गए। पाथम नसांका ने वनडे में डबल सेंचुरी स्कोर करके दुनिया के 12वें बैटर होने का एहसास अपने नाम किया। अफगानिस्तान के खिलाफ कोलेकेले में खेले गए पहले एक रोजा मैच में पाथम नसांका ने 149 गेंदों पर 210 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।
श्री लंका के 26 साला ओपनर ने अपने 50वें एक रोजा मैच के दौरान 8 छक्के और 20 चौके लगाए और नॉट आउट वापस डिग आउट लूटे। फातह नसानका की शानदार इनिंग्स की बदौलत श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 381 रन बनाए और हरीफ टीम के लिए 382 रन का हदफ सेट किया, जो कि अफगानिस्तान हासिल न कर सका। नसानका की शानदार इनिंग्स की बदौलत 3 मैचेस के वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 42 रन से शिकस्त दी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाकी 3 टेस्ट मैचेस के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक विराट कोहली जाती मसरूफियात के बायस बकिया सीरीज के लिए भी दस्तयाब नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जे शाह ने कहा है कि बोर्ड विराट कोहली के फैसले का एहतराम करता है, जबकि रविंद्रा जडेजा और केएल राहुल की शिरकत फिटनेस से मशरूत है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी, जबकि चौथा 23 फरवरी और पांचवा 7 मार्च से शुरू होगा, जबकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान के टेनिस स्टार इसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए। जरा के मुताबिक इसामुल हक 8 वोट लेकर टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल असगर नवाज 15 में से 7 वोट ले सके। कर्नल रिटायर्ड जिया टेनिस फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और आरिफ कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के नए ओहदेदारान का इंतखाब 4 साल के लिए किया गया है। फ्रांसीसी शहरी ने माचिस की तीलियों से दुनिया का सबसे बड़ा एफिल टावर मॉडल तैयार कर लिया। 47 साला फ्रांसीसी शहरी रिचर्ड प्लॉट, जो कि गुज़श्ता 8 बरसों से 7 लाख माचिस की तीलियों से 23 फीट बुलंद एफिल टावर मॉडल बना रहा था, उसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसने कमर्शियल तौर पर दस्तयाब माचिस की तीलियां इस्तेमाल नहीं की। रिचर्ड ने एफिल टावर का यह मॉडल 2015 में तैयार करना शुरू किया और अंदाजन 4200 घंटे की मेहनत से 7,69,000 माचिस की तीलियों से उसे तैयार किया। लेकिन गुज़श्ता बरस जब यह प्रोजेक्ट तैयार होने वाला था तो रिचर्ड को पता चला कि वो तकनीकी बुनियादों पर गिनीज रिकॉर्ड का अहल नहीं हो सकता। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की साबका अदाकारा नूर बुखारी ने शोहर ओन चौधरी की जीत पर गलीज कमेंट्स करने वालों को खरी खरी सुना दी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नूर बुखारी के शोहर ओन चौधरी ने लाहौर के हल्का N128 से कामयाबी हासिल कर ली है। शोहर की कामयाबी के बाद अदाकारा की सोशल मीडिया पोस्ट पर सार्फिन ने नामुनासिब तबसरे किए, जिस पर नूर बुखारी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में गलीज कमेंट्स करने वालों को आईना दिखा दिया। नूर बुखारी ने किसी का नाम लिए बगैर लिखा कि सार्फिन अपना गुस्सा मेरी पोस्ट पर ना निकालें और मेहरबानी करके अपनी मनफी सोच खुद तक महदूद रखें। और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा मोमना इकबाल ने अपनी खूबसूरती पर दिलचस्प इजहार ख्याल किया है। अदाकारा ने कहा कि स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक खूबसूरती की वजह से परेशानियों का सामना किया है। करियर में खूबसूरती ने कोई खास मदद नहीं की, बल्कि खूबसूरती ने ज्यादातर करियर पर मनफी असर ही डाला है। अदाकारा ने मजीद कहा कि आपके आसपास लोग गैर महफूज और हसद का शिकार हो जाते हैं और आप उनसे बुराई महसूस करने लगते हैं। इस तरह खूबसूरती ने सिर्फ उनके लिए मसाइल पैदा किए हैं, जिसका तजुर्बा अपनी जिंदगी में मुताद्दिद बार किया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला ताहाल जारी है। आम इंतखाबात 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में नशिस्तें जो सामने आई हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करते जाएं। ये कौमी असम्बली में आजाद उम्मीदवार 101 नशिस्तें लेकर सबसे आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून 73 और पीपल्स पार्टी ने अब तक 54 नशिस्तें हासिल की हैं। इसके अलावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान 17, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अब तक 2-2 नशिस्तें और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जहां बड़े बड़े अपसेट हुए, वहां मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरबराहान ने कामयाबी भी हासिल की है।
आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मामला। गुज़श्ता रात साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी कोहिनूर न्यूज़ सामने ले आया है। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रात निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से सालसी का किरदार अदा करने पर उनकी रिहाइशगाह पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई। मुलाकात से कबल दोनों जमातों के रहनुमाओं ने इलेक्शन कैंपेन में तनकीद पर गिले शिकवे किए। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नून लीग पर बेजा तनकीद की, जिस पर साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि वो इलेक्शन का हिस्सा था, उसको खत्म किया जाए। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मियां साहब, आप भी तो जलसों में पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते रहे हैं। अब हमें हुकूमत साजी के लिए मामलात को तय करना चाहिए। जमहूरियत में इस्तेहकाम के लिए मिलकर फार्मूला तय करना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है और आसिफ अली जरदारी से होने वाली मुलाकात में पेशरफ से आगाह किया। पार्टी ज़राए ने कहा कि लीगी क़यादत की जानिब से आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। सागदार सरदार अयाज सादिक और राना सनौला कमेटी में शामिल हैं। लीगी ज़राए ने मजीद बताया है कि पार्टी कायद नवाज शरीफ ने कमेटी को आजाद उम्मीदवारों से राब्ते तेज करने का टास्क दे दिया है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को भी आजाद उम्मीदवारों से राब्ते करने का टास्क सौंप दिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात 2024 के कामयाब इनेकाद पर पूरी पाकिस्तानी कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सियासी जमातों और तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत और अहलकार बेतहाशा मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने के लिए हमारी सबसे ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं। कौमी मीडिया, सिविल सोसाइटी, सिविल इंतजामिया और अदलिया के अरकान के तामीरी किरदार ने कौमी तारीख की सबसे बड़ी इंतखाबी मश्क के कामयाब इनेकाद को मुमकिन बनाया। तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत और तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। कौम को इंतशार और पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकिम हाथों और एक शफा बख्श राब्ते की जरूरत है। पोलराइजेशन और इंतशार 250 मिलियन आबादी वाले तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं, बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की मशक है। सियासी क़यादत और उनके कारकुनों को जाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवाम की खिदमत करने की कोशिश को हम आहंग करना चाहिए, जो जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। उनका कहना है कि जैसा कि पाकिस्तान के अवाम ने आईन पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद जाहिर किया है, अब तमाम सियासी जमातों पर फर्ज है कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। जब हम इस कौमी संग मील से आगे बढ़ते हैं तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि आज मुल्क कहां खड़ा है और बाकी अक़वाम में हमारा सही मुकाम कहां होना चाहिए। अपने पैगाम के आखिर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ख्वाहिश का इजहार किया कि इंतखाबात सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएं और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अमन और खुशहाली का मरकज साबित हो। विफाक बलोचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमें सियासी इख्तिलाफात को जाती दुश्मनी में नहीं लेकर जाना चाहिए। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के अवाम है। हम ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं जिससे मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम हो। अभी इलेक्शन रिजल्ट मुकम्मल होने के इंतजार में है। PTI के आजाद उम्मीदवारों से राब्ता नहीं हुआ। कम तैयारी के साथ पंजाब में इलेक्शन मुहिम चलाई। लाहौर में रात तक हम बड़े मार्जिन से जीत रहे थे। सुबह उठा तो देखा कि हम हार चुके हैं। आजाद उम्मीदवार क्या फैसले करते हैं इस पर भी आवाम की नजर है। मैं रिजल्ट पर मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। इस इलेक्शन से नजर आया कि पीपल्स पार्टी का पोटेंशियल क्या है। पीपल्स पार्टी की पंजाब की सियासत बहुत रोशन है। पंजाब का वजीर आला पीपल्स पार्टी के वोट के बगैर खुद को मुंतखब नहीं करवा सकेगा। बलूचिस्तान में भी हम सबको हुकूमत बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हमारी हुकूमत बनी तो जो मंसूबे सिंध में दिए वही बलूचिस्तान में देने की कोशिश करेंगे। चाहूंगा कि बलूचिस्तान में 6 माह में NICV जैसा मंसूबा बना दूं। बलूचिस्तान में अमन पर जोर देंगे।
اور ناظرین EVM ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے لیے ہماری طویل جدوجہد کو یاد رکھیں. EVM میں کاغذی بیلٹ تھے جنہیں ہاتھ سے گنا جا سکتا تھا، لیکن اس میں ایک سادہ الیکٹرانک کیلکولیٹر کاؤنٹر بھی تھا جو ہر ووٹ ڈالنے کے لیے دبائے جانے والے بٹن کو ساتھ ساتھ گن سکتا تھا. ہر امیدوار کا رزلٹ پول ختم ہونے کے 5 منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا. ہماری یہ تمام تر جدوجہد جس کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد میٹنگیں ہوئیں، ناکام کی گئیں. اور ناظرین، عام انتخابات میں چاروں صوبائی اسمبلیوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. مسلم لیگ نون پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی بن گئی ہے. صوبے کی 297 میں سے 144 جنرل نشستیں مسلم لیگ نون نے حاصل کر لی ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 129 نشستیں لے کر صوبے میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی 10 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ دیگر پارٹیوں کے امیدوار 12 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی 130 میں سے 84 جنرل نشستیں جیت کر صوبے میں دوبارہ حکومت بنانے کے قابل ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں MQM پاکستان 27 سیٹیں جیت کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں. تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 14 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. دیگر جماعتوں کے 7 ارکان بھی سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئے ہیں. سندھ اسمبلی کی 84 جنرل نشستیں لینے کے بعد پیپلز پارٹی 20 خواتین اور 6 اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کے بھی حقدار قرار پائی ہے. یوں پیپلز پارٹی ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سندھ اسمبلی میں 100 سے زائد نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے 115 میں سے 90 جنرل نشستیں جیت لی ہیں. جمعیت علماء اسلام ایف کے 7 امیدوار جیت کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون 5 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. دیگر جماعتوں کے امیدوار 9 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. بلوچستان میں پیپلز پارٹی 51 میں سے 11 جنرل نشستیں جیت کر صوبے کی بڑی جماعت بن گئی ہے. صوبے میں جمعیت علماء اسلام 10 سیٹیں جیت کر دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار 8 نشستوں پر کامیاب ہوئے ہیں. دیگر جماعتوں کے 19 ارکان رکن منتخب ہوئے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی ہے. چیئرپرسن فافن مسرت قدیم کی جانب سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ملک میں 2 برس سے جاری افراتفری کے بعد الیکشن ہوئے. یکساں مواقع نہ ملنے اور دہشت گردی کے خطرات کے باوجود سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا. فافن رپورٹ میں بتایا گیا کہ 8 فروری کو ملک میں ہونے والے انتخابات میں 5 کروڑ سے زیادہ افراد نے ووٹ ڈالا. الیکشن کمیشن نے انتخابی مشق کو منعقد کیا جو قابل ستائش ہے، تاہم ابتدائی نتائج کی تیاری اور نتائج کے اعلان نے منظم الیکشن کو گہنا دیا ہے. فافن چیئرپرسن نے کہا کہ انتخابات سے ملک میں بے یقینی کا دور بند ہو گیا ہے. اب سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں استحکام کو یقینی بنائیں. امیدواروں کے نتائج پر تحفظات الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. تو دوسری جانب بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں اکثریتی حکومت بنے یا اتحادی حکومت بنے، اسے IMF کے نئے بیل آؤٹ پروگرام کے سہارے کی ضرورت ہر صورت رہے گی. مالیاتی کے عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق ایشیائی فرنٹیئر کیپٹل کے فنڈ مینیجر روچر ڈیسائی نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو آئندہ 6 ماہ میں کئی بڑی ادائیگیاں کرنی ہیں، جس کے لیے اسے لمبے عرصے کا بڑا قرض پروگرام چاہیے ہوگا. روچر ڈیسائی نے مزید کہا کہ حکومت چاہے اکثریتی ہو یا اتحادی، اسے IMF کے پاس جانا ہوگا کیونکہ پاکستان کے بیرونی قرضوں کی صورتحال غیر یقینی اور غیر مستحکم ہے. فرنٹیئر کیپٹل کے فنڈ مینیجر روچر ڈیسائی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں شرح سود آئندہ 9 سے 12 ماہ میں کم ہو سکتی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج حساس قیمتوں میں سیاسی اقتصادی خدشات شامل ہونے کے سبب عالمی مالیاتی بحران سے بہت سستا ہے. اور ناظرین، پاکستان کے عام انتخابات پر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کی جانب سے دیے گئے بیانات پر وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے. وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ مختلف ممالک اور تنظیموں کی جانب سے پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات سے متعلق بیانات دیے گئے. وزارت خارجہ میں کہا گیا کہ ان کی جانب سے دیے گئے کچھ بیانات حقیقت پر مبنی بھی نہیں تھے. پولنگ کے روز پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش نہیں تھی، صرف موبائل سروس دہشت گردی کے واقعات سے بچنے کے لیے بند کی گئی تھی. عام انتخابات نے یہ واضح کر دیا کہ بہت سے لوگ جو خدشات ظاہر کر رہے تھے وہ سب غلط تھے.
वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने एक मुस्तहकम और जमहूरी मुआशरे की तमीर के अज़्म के तहत इंतखाबात का इनेकाद किया। हम अपने दोस्तों के कारआमद मशवरों को अहमियत देते हैं, लेकिन इंतखाबी अमल की तकमील से कबल मनफी तबसरा करना बेबुनियाद और ठीक नहीं है। अक्सरियत हमारे पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक में और KPK में हुकूमत बनाएगी और पंजाब में भी इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। हम तकरीबन अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने रऊफ हसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन पुरअमन हुए हैं। वोटिंग का अमल 5 बजे मुकम्मल हो गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और कानूनी फरीजे से पहले भी नाकाम हो चुका है। आखिरी मरहले में भी इलेक्शन कमीशन फेल हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीती हुई सीटों पर हराया गया है। हम दावे से कहते हैं कि PTI को 170 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल हुई। 94 कौमी असम्बली की हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले जारी किए हैं। KPK में हमारे पास 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। बानी PTI की जानिब से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा कल खुद साख्ता प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है, इस बयान की हम मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारे पास तमाम रिजल्ट आ चुके हैं। नताइज का आज 12 बजे से पहले ऐलान किया जाए। मेरी तमाम कारकुनान से दरख्वास्त है कि आप एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज करें। आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए। अगर ये 12 बजे तक रिजल्ट जारी नहीं करते तो हम इस पर एहतजाज करेंगे। हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। ये पहली बार होगा कि पाकिस्तान की अवाम ने लीडरशिप के जेलों में होते हुए भी उन्होंने उनको जिताया है। हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, ये हमारा मुल्क है। इलेक्शन में कई हारने वाले उम्मीदवारों ने अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया तो मुतादिद उम्मीदवारों की जानिब से नताइज को चैलेंज किया जाने लगा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने NA-15 मानसहरा का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया। दूसरी जानिब NA-130 से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर के हल्का NA-119 से मरियम नवाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने हल्का NA-128 के नताइज जारी करने और वोटों की गिनती में शामिल न करने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने सियालकोट के हल्का NA-71 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा आसिफ की कामयाबी और फॉर्म 47 का नतीजा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA-126 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैफुल मलूक खोखर की कामयाबी को भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। उमर डार की अहलिया रोहा उमर ने भी PP-46 सियालकोट के इलेक्शन नताइज को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट में NA-127 से अतातारड़ की कामयाबी भी चैलेंज कर दी गई है। आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास खोखर ने दरखास्त में रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया है। और नाज़रीन, अब कुछ बात करें इसराइली बर्बरियत की, तो आपको बताएं कि इसराइल की रफा पर फजाई हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि दर्जन से जायद जख्मी हैं। आलमी खबर साइदारे के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से रफा पर हमले और हमास के खात्मे के लिए मांगे गए मंसूबे के चंद घंटों बाद ही इसराइली फौज ने रफा पर वहशाना बमबारी कर दी। गजा के 23 लाख शहरियों में से निस्फ से जायद रफा में पनाह लिए हुए हैं और तकरीबन एक ही रोज में यहाँ बमबारी कर रहा है। गजा की वजारत सेहत के तर्जुमान अशरफ अल कदर ने बताया कि खान यूनिस के सबसे बड़े नासिर अस्पताल पर इसराइली फोर्सेस ने फायरिंग की, जिसमें एक फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इस अस्पताल में 300 तिबी अमला, 450 मरीज और 10,000 बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। दूसरी जानिब शाम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल की बमबारी में जाँ बहक होने वालों की तादाद 14 हो गई है, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के पहले हमले में हिजबुल्लाह के 2 जंगजू समेत 11 अफराद जाँ बहक और 6 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसराइल ने दावा किया कि उसकी फोर्सेज ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें असलहा डिपो भी तबाह कर दिया गया, जबकि मुतादिद जंगजू मारे गए। उधर इंसानी हुकूक के निगरान इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके में एक रिहायशी इमारत पर इसराइल ने बमबारी की। बमबारी में इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि उसमें मौजूद 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 5 से ज़ायद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसराइल ने दमिश्क के देही इलाकों में मज़ा मिलिट्री एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को भी ठहराया था और उसके बाद से शाम में हिजबुल्लाह के ठिकानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है।
यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। और नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की लाहौर में बड़ी कामयाबियों के बाद मुबारकबादों और जश्न का सिलसिला जारी है। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अहमद रियाज बलोच खोकर पैलेस में मलिक सैफुल मलूक के खोकर के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अहमद, बताइएगा। खोकर पैलेस पे जहां से जो मुस्लिम लीग के खोकर बरादरान की तरफ से जो इत्तेमाद का इजहार किया गया था क़यादत की तरफ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह खोकर बरादरान ने उस एक मान को बरकरार रखा और खोकर बरादरान तमाम नशिस्तों से माशाल्लाह से कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ सैफुल मलूक खोकर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये जीत, बल्कि जीते कैसे समेटी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा कर जिन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने मेरी ये जो मेरे ऊपर बोझ था या मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के के अवाम ने मोहब्बत का इजहार करते हुए अल्लाह हमने सारा अंजाम दिया। मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मैं अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जो मेरे कायद ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरखुर हुआ। और मैं अपनी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे ख़ानदान के ऊपर अपनी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर मोहब्बत करते हुए उन्होंने जो मेहनत की, अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ बख्शा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात की है सैफुल मलूक खोकर साहब ने, जिनका कहना है कि हम ना सिर्फ ये जो जमात के अंदर काली भेड़ें घुसी हुई हैं उन्हें निकालेंगे, बल्कि जो स्टूडेंट सतह पे जो इस वक्त मामलात हैं जो जिन्हें ट्रेन करने की जरूरत है, उन्हें ट्रेन करके हम क़यादत में लेके आएंगे। बोल के लब आजाद हैं तेरे। नाजरीन, फैज अहमद फैज की शायरी फितरी इनकलाब और फलसफा की सोच उजागर करती है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फैज अहमद फैज फेस्टिवल का आगाज हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद से। जी नादरीन, फितरी, दिलचस्प, इनकलाबी, फलसफाना तगैयर से मुज़य्यन फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने फैज़ फेस्टिवल का इनकाद कर दिया है और लाहौरी बड़ी तादाद में फैज़ फेस्टिवल में यहाँ पर अदबी सरगर्मियाँ और म्यूज़िकल सरगर्मियाँ देखने के लिए लाहौरी यहाँ पर उमड़ आए हैं। जोश मरन ते दस नहीं सकता मैं सा किन्ना रोया, फिर फराग दे टुर जावन ते खू हंजवाता जोया, ते फैज़ गया ते बाबा नजमी मैं सा पागल होया, दामन मरिया ते इंज लगा जिस तरह मैं हम होया। यार फैज साहब को तो सारी दुनिया देखती है और उनकी तरफ बल्कि देखती है। बंदे थे जो कि इनकलाबी थे, बहुत बड़े शायर थे। कई लोग तो समझते हैं कि उनसे बड़ा कोई शायर, वो कई बड़े बड़े शायरों से बड़ा उनको समझते हैं। वो ऐसे शख्स थे जिनके दिल में दर्द था, मताए दर्द, यानी जो सारा सरमाया ही दर्द है। दिल में जो सरमाया है वो दर्द है। जी नादरीन, फितरी, दिलचस्प, इनकलाबी, फलसफाना तगैयर से मुज़य्यन फैज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल ने फैज़ फेस्टिवल पीपी 145 और एनए 117 से अब्दुल अलीम खान ने इलेक्शन का मार्का अपने नाम कर लिया। मरकजी ऑफिस में समीउल्लाह खान और अब्दुल अलीम खान की जीत की खुशी में जश्न, कारकुनान और मुकामी ओहदेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिठाइयाँ तकसीम, फूलों की पत्तियां निशावर की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज मोहम्मद यूनुस से। जी यूनुस, क्या समा है इस वक्त मरकजी दफ्तर में, क्या कहना है लीगी रहनुमा नौ मुंतखब एमपीए का इलेक्शन के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ एनए 117 और पीपी 145 पे, जहाँ पर समीउल्लाह खान साहब यहाँ पर फतेहयाब हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ समीउल्लाह खान मौजूद है, ये जानते हैं वो इस खुशी के हवाले से क्या कहते हैं, सब बताइएगा क्या कहेंगे आज जीत के हवाले से? देखें जी, हमें तो पहले ही पता था कि मुल्क के जो हालात हैं उसको मियां नवाज शरीफ के अलावा कोई हल नहीं कर सकता, और जिस तरह के नताइज आए हैं उससे ये लगता है कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून वाज़े बर्तरी से हुकूमत बनाने जा रही है और इंशाअल्लाह ताला मरकज में भी हमारी हुकूमत होगी। और मियां नवाज शरीफ का ये विजन है कि वो बाकी सियासी जमातों को साथ लेके चलते हैं, तो मरकज में बाकी सियासी जमातों को भी साथ लेके इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे। सबसे पहले बुनियादी काम कौन से करने वाले शादरा में जो आप करना चाहेंगे? सबसे पहले शादरा में देखें जी, जो बहुत बड़ा इशू है नंबर 1 वो सीवरेज का इशू है, पीने वाले पानी का इशू है। इसके अलावा बाजार, सड़कें, गलियां टूटी फूटी हैं, ये बुनियादी मसाइल है। लेकिन इनके अलावा भी गर्मियों में लोड शेडिंग का इशू होता है, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, सर्दियों में गैस नहीं आती है,
तो और भी मसाइल हैं एजुकेशन के, हेल्थ के, हमारा हॉस्पिटल है, इसमें बहुत बेहतरी होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला शादरा के तमाम मसाइल को मैं और अलीम खान साहब मिल के हल करेंगे। शादरा के तमाम मसाइल मिलकर सॉल्व करने के बाद मौजूद है जो हमसे बात करते हुए सवाल सर आप बताइएगा क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ शुक्र है कि उन्होंने हमें फतह, अल्लाह पाक की तरफ से हमें फतह नसीब हुई है। क्योंकि शादरा के जितने मसाइल है उसका हल सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही है, और समीउल्लाह खान साहब की शक्ल में नवाज शरीफ साहब ने हमें एक शेर और जिंदा सिफ्त आदमी अता किया है, और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ शादरा के मसाइल हल करेगी तो एक ही जमात हो, मुस्लिम लीग नून है। और इंशाअल्लाह के मसाइल में मुस्लिम लीग नून यहाँ है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। बंद रोड मंसूबे के पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 83% काम मुकम्मल हो गया। पैकेज 2 का 72% काम मुकम्मल कर लिया गया। पैकेज 1 के तमाम सेक्शंस पर एनजे बैरियर और लाइटिंग पोल्स लगाने का अमल तेजी से जारी है। पैकेज 1 न्यासी इंटरचेंज तासकिया 3.65 किलोमीटर आइंदा चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पैकेज 1 के हाई राइज एरिया पर स्पॉल्ट का काम दिन रात जारी है। स्पॉल्ट वर्क जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कमिश्नर और डीजी ने साइट ऑफिस में पैकेज 2 के यौमिया टारगेट का जायजा लिया। मंसूबे के तमाम सेक्शंस पर बैक वक्त काम जारी। पैकेज 1 के तमाम सबवेज मुकम्मल हैं। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की मकामी होटल में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर्स कॉन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी, डॉक्टर अल्ताफ चीमा, डॉक्टर उस्मान लाशारी, डॉक्टर आफ्ताब इकबाल शेख और डॉक्टर मंजूर राना की शिरकत। डॉक्टर मजहरुल इस्लाम, डॉक्टर शहरियार भट्टी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शब्बीर, डॉक्टर साइमा जुबैर, प्रोफेसर अमजद, डॉक्टर सीमा अशरफ, डॉक्टर नदीम ख्वाजा ने भी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम बोले, इंतहाई अहम मौजू पर आगाही कॉन्फ्रेंस के इनकाद पर इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ। आज की आगाही कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत इंतहाई खुश आइंद है। पाकिस्तान में 39 साल का हर दूसरा शहरी ब्लड प्रेशर और शुगर का शिकार हो रहा है। हमें एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना होगा। पाकिस्तान में हम रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमारी जिंदगी में फैमिली मेडिसिन की बहुत अहमियत है। और अब आपको बताएं कि डेरा गाजी खान के इलाके कोट मुबारक में पुलिस का लादी गैंग के डाकू से मुकाबला। लीड फोर्स का जवान मोहम्मद शहरियार डाकू की फायरिंग से शहीद हो गया। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डीपीओ और डीजी खान अहमद मायुद्दीन की क़यादत में पुलिस टीमों के हमरा ऑपरेशन का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखें, ये डेरा गाजी खान के इलाके कोट मुबारक में पुलिस का लादी गैंग के डाकुओं से मुकाबला जारी है और इस मुकाबले का बाकायदा नोटिस भी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने लिया है। मैं बताता चलूं कि एलीट फोर्स का जवान मोहम्मद शहरियार डाकुओं की फायरिंग से शहीद हो गया है, जबकि आईजी पंजाब की जानिब से जो है वो डीपीओ डीजी खान अहमद मयूद्दीन की क़यादत में पुलिस टीमों ने ताकुब के बाद फायरिंग में मुलविस डाकुओं को इस वक्त घेरे में ले रखा है और पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी जारी है। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो 4 घंटे से जायद जारी मुकाबले में सरगना इरफान मुरीदी और काशिफ रंग समेत लादी गैंग के 4 डाकू जो है वो इस वक्त हलाक हो चुके हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि लादी गैंग के करिंदों ने नाका पर पुलिस पार्टी को रोकने पर फायरिंग की, जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का डाकुओं की फायरिंग से जामे शहादत नोश करने वाले शहीद अहलकार की कुर्बानी को खराजे अकीदत भी जो है वो पेश किया जा रहा है। इसी तरह से आरपी और डीपीओ डीजी खान शहीद अहलकार की फैमिली के साथ आईजी पंजाब का कहना था कि फौरी राब्ता करें और इसी तरह से एलीट फोर्स के अहलकार शहरियार ने आईजी पंजाब का कहना था कि फर्ज की राह में अपनी जान का नजराना पेश करके पंजाब पुलिस का सर फख्र से बुलंद किया है। पंजाब पुलिस ने अपने बहादुर फर्जंद की लाजवाल कुर्बानी को जो है वो कभी फरामोश नहीं करेगी और इसी तरह से पंजाब पुलिस शहरियार जैसे 1600 से जायद बहादुर शोधा की अमीन फोर्स है। जबकि आईजी पंजाब का कहना था कि शहीद के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे, तमाम जरूरियात का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। मैं बताता चलूं कि इस वक्त डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला जारी है और 4 डाकुओं को जो है वो फायरिंग करके जहन्नुम वासिल भी कर दिया गया है, जबकि एलीट फोर्स का एक जवान जामे शहादत नोश फरमा गया है। आईजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक तमाम इलाके को इस वक्त घेरे में ले रखा है और पुलिस जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी कर रही है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका।
खबर शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीमों के दरमियान मैच में दिलचस्प वाकया रूनुमा हो गया। दोनों टीमों के माबेन खेले जा रहे सीरीज के तीसरे और फैसला कुन वनडे मैच में अजीब मंजर उस वक्त देखने को मिला जब अलाना किंग ने छक्का लगाया और उसी गेंद पर वो हिट विकेट आउट भी हो गईं। मैच के 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब मसाबाता क्लास ने नो बॉल की तो ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने छक्का लगा दिया और वो अपना तवाजुन खो बैठी और हिट विकेट हो गई। ताहम गेंद कमर से ऊंची थी तो अंपायर ने नो बॉल का इशारा कर दिया और यूं कैंगरूज को एक गेंद पर 7 रन मिल गए। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीम ने पहले वनडे में कामयाबी समेटकर पहली बार तारीख में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में फतह हासिल की थी। Oh, the full toss. Anchi's hit the stumps at the same time. Alana King. But it's a no ball. Eloise Sheridan. It's square leg. See the confusion on everyone's face as to what's just happened there. Swivels around and cleans the stumps up. मजीद आपको बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाकी 3 टेस्ट मैचेस के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक विराट कोहली जाती मसरूफियात के बायस बकिया सीरीज के लिए भी दस्तयाब नहीं होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि बोर्ड विराट कोहली के फैसले का एहतराम करता है, जबकि रविंद्र जडेजा के और केएल राहुल की शिरकत फिटनेस से मशरूत है। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी जबकि चौथा 23 फरवरी और पांचवा 7 मार्च से शुरू होगा, जबकि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। और नाजरीन, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की साबका अदाकारा नूर बुखारी ने शोहर ओन चौधरी की जीत पर गलीज कमेंट्स करने वालों को खरी खरी सुना दी हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नूर बुखारी के शोहर ओन चौधरी ने लाहौर के हल्का NA 128 से कामयाबी हासिल की है। शोहर की कामयाबी के बाद अदाकारा की सोशल मीडिया पोस्ट पर सारिफीन ने नामुनासिब तबसरे किए, जिस पर नूर बुखारी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में गलीज कमेंट्स करने वालों को आईना दिखा दिया। नूर बुखारी ने किसी का नाम लिए बगैर लिखा कि सारिफीन अपना गुस्सा मेरी पोस्ट पर ना निकालें और मेहरबानी करके अपनी मनफी सोच खुद तक महदूद रखें। उन्होंने लिखा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन शख्स को अपने घर में सालन में दूसरी बोटी नहीं मिलती वो भी सोशल मीडिया पर आकर मारूफ शख्सियात के खिलाफ लिखते हैं। ऐसे लोग अपनी भड़ास शोबिस शख्सियात की सोशल मीडिया पोस्ट पर आकर निकालते हैं। अदाकारा ने शोहर ओन चौधरी की फतह के ऐलान के बाद उनकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। बाद अज़ा उन्होंने पोस्ट के कमेंट्स की ऑप्शन बंद कर दी थी। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा मोमना इकबाल ने अपनी खूबसूरती पर दिलचस्प इजहार ख्याल किया है। अदाकारा ने कहा कि स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक खूबसूरती की वजह से परेशानियों का सामना किया है। कैरियर में खूबसूरती ने कोई खास मदद नहीं की, बल्कि खूबसूरती ने ज्यादातर कैरियर पर मनफी असर ही डाला है। अदाकारा ने मजीद कहा कि आपके आसपास के लोग गैर महफूज और हसद का शिकार हो जाते हैं और आप उनसे बराई महसूस करने लगते हैं। इस तरह खूबसूरती ने सिर्फ उनके लिए मसाइल पैदा किए हैं जिसका तजुर्बा अपनी जिंदगी में मुतादिद बार किया है। खबर से खबर तक का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।